Okay. So what about lock and key model? Substrate and enzyme. We had substrate and enzyme. Then it makes a complex because enzyme attaches to the substrate. Then we enzyme product complex is formed because जब वो अटैचमेंट हो जाता है एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट का, देन इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट फिर उसके बाद डी अटैच हो जाता है और उससे एंजाइम भी फिर बाद में डी अटैच हो जाता है, एंड देन वी गेट अवर प्रोडक्ट जो भी हमको चाहिए था. For example, let me explain how I am saying all these things. For example, you have carbon dioxide and you have water. You are taking a chemical reaction of carbon dioxide CO2 with water, that is H2O. Then what is formed is H2CO3. You might have studied this in your chemistry class also, that when carbon dioxide reacts with water, then it forms H2CO3, that is carbonic acid. If there are people who have their NCRTs right now, they can open their NCRT on page number 155. Otherwise, I have also sent you the notes in your teachment dashboard section, in which we have this page number 155. When I sent you the PDF for enzymes, you can also open that page. So for the reference, I have taken the reference of carbon dioxide with the water that combines and it forms carbonic acid, that is H2CO3. This reaction takes place in the presence of an enzyme named as carbonic anhydrase. What is the name of enzyme? Carbonic anhydrase. What does carbonic anhydrase do? It combines CO2 with the water and that gets converted into H2CO3, that is carbonic acid. So what happened here? What happened here was, see, look at the screen, this yellow substrate, the substrate was carbon dioxide or water, and the enzyme was carbonic anhydrase. That get attached to carbonic anhydrase get attached to CO2 and water. It made enzyme substrate complex. There would be some intermediate step. जब वो complex बना होगा, उसके बाद enzyme product complex बना, and after that enzyme अलग हो गया and products अलग हो गए, and we got the product as H2CO3, और enzyme जो हमारा carbonic anhydrase था वो as it is रह गया अलग होके. तो अगर किसी एंजाइम की एब्सेंस में रिएक्शन होता है, देन द रिएक्शन इज वेरी स्लो. दैट इज व्हाई वी नीड एंजाइम, बिकॉज अगर एंजाइम का क्या काम है कि वो आपको इक्विलिब्रियम को अटेन करने की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको वो इंक्रीज कर रहा है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. आई विल टेल यू कैसे. फर्दर वी विल स्टडी कि वो ऐसा कैसे कर रहा है, बट फॉर नाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, रेट ऑफ अचीविंग द रिएक्शन. सो अगर आप बिना एंजाइम के काम करेंगे और आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन बिना एंजाइम के, एंजाइम की एब्सेंस में काम करेगा, देन द रिएक्शन इज वेरी स्लो. और अगर मैं बात करूं CO2 प्लस वाटर जो कि H2CO3 बना रहा है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, अगर हम उस रिएक्शन की बात करें और वो रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एब्सेंस में होगा, तो उसकी जो स्पीड रहती है वो ये रहेगी कि लगभग 1 घंटे में H2CO3 के 200 मॉलिक्यूल बनेंगे. What will happen in absence of enzyme? CO2 and water will form 200 molecules of H2CO3 in almost 1 hour. लेकिन अगर हम यूज कर लेते हैं हमारा एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, देन इन दैट केस जो हमारी रिएक्शन की स्पीड है वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है, एंड दैट increase is 6 lakh molecules being formed every second. You know, can you feel the difference after having an enzyme in a reaction and before having the enzyme in that same reaction? जब हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं था तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे 1 घंटे में.
1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल। लेकिन जब हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज को यूज किया देन रिएक्शन का स्पीड ऐसे ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ कि 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बनने लगे। दिस इज द पावर ऑफ एन एंजाइम। दिस इज द पावर कि जो अनकेटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं वो बायोलॉजिकली रेलेवेंट कंडीशन पे स्लो होते हैं, इसीलिए वी नीड एंजाइम ताकि हम अपना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकें। और इसी कंडीशन के अंडर जो एंजाइम है, जब हमने CO2 और H2O वाली कंडीशन की बात करी तो हमारा जो एंजाइम है उसने आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को ऑलमोस्ट 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा दिया। 10 मिलियन टाइम्स। Okay, so the power of enzymes is incredible indeed. Of course, निस्संदेह enzymes की जो power है वो incredible है. This reaction that I have told you, carbon dioxide plus water, I am repeating this again and again because this question comes in exams so many times. कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज की ज़रूरत हमको किस रिएक्शन में होती है, अगर आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाते हैं, यूज़ करते हैं तो आपका क्या प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट में अगर आप कैटेलाइज्ड रिएक्शन करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट कितने मॉलिक्यूल मिल सकते हैं, अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है तो कितने मिल सकते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में डायरेक्टली ये पूछ लिया जाएगा कि गिव अस द रिएक्शन ऑफ मेकिंग ऑफ कार्बोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम and give a detail about this thing. So you would have to give the detail कि बिना उसके एंजाइम के रिएक्शन कैसे हो रही थी, एंजाइम के साथ रिएक्शन कैसे हुई, कितना उसमें डिफरेंस आया, एंड उसके थ्रू आप ये बता सकते हैं कि एंजाइम की पावर कितनी ज़्यादा होती है एंड व्हाई इज प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड। After that, in your NCERT book, you have an other reaction that is a multi-step chemical reaction when each of the steps is catalyzed by the same enzyme complex or by different enzymes is called a metabolic pathway. इसमें क्या बोला है कि ऐसे बहुत सारे हजारों ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसी यूनिक केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। जो कोई मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, मतलब कि बहुत सारे स्टेप्स में कोई अगर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती हो तो उसका जो हर एक स्टेप है वो हो सकता है एक ही एंजाइम उस सारे स्टेप को करे, मतलब एक ही एंजाइम को आपको जरूरत पड़े उस पूरे मल्टी स्टेप रिएक्शन की हर एक स्टेप को कराने में, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स की जरूरत हो। इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। फॉर एग्जाम्पल, हम आगे प्लांट फिजियोलॉजी में इस बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए यू कैन रिमेंबर अ रिएक्शन that glucose gets converted into pyruvic acid, and when glucose reacts with oxygen then it gets converted into C3H4O3, that is also C6H12O6, लेकिन उसका स्टोकियोमेट्री चेंज हो गया है एंड वो वाटर को रिलीज कर देता है। आई नो ये थोड़ा सा अनक्लियर रहा होगा आपको भी रिएक्शन, बट ये मैंने अभी इसीलिए बताया बिकॉज यू हैव दिस रिएक्शन इन योर एनसीईआरटी। बट हम आगे चैप्टर 14 व्हेन वी विल स्टडी रेस्पिरेशन देन वी विल स्टडी अबाउट ग्लाइकोलिसिस एंड फेट आफ्टर ग्लाइकोलिसिस, तो उसके अंदर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सिमिलरली आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं एनारोबिक कंडीशंस में वहां पे लैक्टिक एसिड बनता है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे हु आर डूइंग एक्सरसाइजेस, जब आप लोग एक्सरसाइज करते हो, दौड़ते हो, तो भागते भागते आपको क्रैम्प्स होने लगते हैं। यू फील पेन इन योर नीज, इन योर फुट, इन योर मसल्स। दिस पेन इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्यों, क्या होता है जब अनएरोबिक कंडीशंस है, बिकॉज व्हेन यू आर रनिंग एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस वो इज कि ऑक्सीजन की आपको मतलब जल्दी 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 ऑक्सीजन आप ले रहे हो बिकॉज देयर इज अ लिटिल शॉर्टेज, तो आप लंबा लंबा सांस लेते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का आप इनटेक कर सको। सो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस इज इन एनएरोबिक कंडीशंस दैट ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। लेकिन अगर एरोबिक कंडीशन है, ऑक्सीजेनिक कंडीशंस हैं जहां पे आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है कंडीशन में, उस कंडीशन में यू गेट पायरुविक एसिड। कहने का मतलब ये है
कि एनएरोबिक कंडीशंस में लैक्टिक एसिड बनता है, एरोबिक कंडीशंस में पायरुविक एसिड मिलता है। लेकिन सिमिलरली अगर यीस्ट की हम बात करें, यीस्ट क्या होती है? यीस्ट इज अ बडिंग फंगी, यीस्ट इज नोन एज बडिंग फंगी। फंजाई के बारे में आपने पढ़ा होगा, फंजाई, एल्गे, ऑल दीज थिंग्स। सो यीस्ट इज अ फंजाई। सो इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, जब फर्मेंटेशन रिएक्शन होता है तो यही सिमिलर पाथवे जो हम अभी बात कर रहे हैं कि एरोबिक एनारोबिक कंडीशंस, तो इस पाथवे की हेल्प से इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, दैट इज नोन एज एल्कोहल। I am telling all these things from NCERT. You need to read these things. You need to underline all those things. Then, after that, how do enzymes bring about such high rates of chemical conversions? अब आती है यहाँ बात, you can see on the screen lock and key model. I have already explained it to you so many of times कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो अब आप ये समझो कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ बाइंड करता है। कैसे बाइंड करता है? ऐसे तो नहीं हो जाता है जैसे इतना आसानी से ये डायग्राम में दिख रहा है कि जस्ट एक ब्लू कलर का एंजाइम है, उसके ऊपर येलो कलर का सबस्ट्रेट आया और वो आके अटैच हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इंस्टेड एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है जो उसकी पॉकेट होती है। एंजाइम के पास उसकी एक एक्टिव साइट होती है दैट यू कैन कॉल एज पॉकेट ऑफ इट्स ऑफ द एंजाइम। वो जो एक्टिव साइट है वहां पे आके योर सबस्ट्रेट गेट्स अटैच्ड टू इट। लेट मी शो यू। सी, आई हैव मेड दिस डायग्राम। आई हैव मेड दिस डायग्राम टू शो यू कि किस तरह का एंजाइम स्ट्रक्चर रहता होगा। देखो, मैंने आपको लेक्चर के पहले ही जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था उसमें आई टोल्ड यू प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो मोस्टली प्रोटीन होते हैं। आवर एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स। ठीक है, तो सी सी दिस, enzyme is a biocatalyst that increases the rate of chemical reaction without itself being changed in the overall process, and its molecular weight is between 12,000 to less than 1 million. Properties of enzyme की first property पढ़िए. What is this? Most of them are proteins except some enzymes wherein न्यूक्लिक एसिड्स बिहेव लाइक एंजाइम्स, जैसे कि राइबोजाइम्स। ये एक एक्सेप्शन है जहां पे जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो एंजाइम की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। जैसे कि कुछ स्मॉल कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर नॉट प्रोटीन, बट उसके अलावा जितने भी एंजाइम्स वी हैव दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो ये बात कहाँ से आई अभी कि मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया कि मैंने डायग्राम ड्रॉ करा है। व्हाट दिस डायग्राम इज डिपिक्टिंग, अगर आप प्रोटीन के बारे में सोचोगे, प्रोटीन का मॉलिक्यूल देखोगे, आपका जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर यू हैव, उस चैप्टर में भी आपके पास डायग्राम आए होंगे। यू वुड हैव ओवरकम द डायग्राम्स जब आपने प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा, बिकॉज ऑन इन फिगर 9.4 ऑफ पेज नंबर 150 यू आर गिवन अ डायग्राम जहां पे उन्होंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बताया है। तो उसी तरह का डायग्राम आई हैव यूज्ड हेयर आपको समझाने के लिए कि समझ लो कि ये एक एंजाइम है, क्योंकि एक पॉलीपेप्टाइड है, इसका टर्शरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। एक तरफ जो पॉलीपेप्टाइड चेन है मैंने वो आपको शो करी है, दूसरी तरफ टर्शरी स्ट्रक्चर शो किया है प्रोटीन का। जो मैंने ब्राउनिश क्लेफ्ट लाइक पोर्शन दिखाया है टर्शरी स्ट्रक्चर में, एंड सिमिलरली पॉलीपेप्टाइड वाले में जो येलोइश पोर्शन है क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर, दीज कैन बी द एक्टिव साइट्स। थोड़ा सा प्लीज विजुअलाइज करो इसको, थोड़ा सा जस्ट इमेजिन द थिंग्स, ट्राई टू इमेजिन द थिंग्स कि एंजाइम कैसे रहते होंगे। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर रहता होगा जिसमें ये जो येलो स्ट्रक्चर है इस तरह की कोई पॉकेट या क्लेफ्ट उसकी बनी होती होगी, दैट कुड बी बिहेविंग एज एक्टिव साइट।
तो होता क्या है, व्हाट हैपेंस हियर, जो एंजाइम आपका है वो सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाता है, क्योंकि सबस्ट्रेट एक ऐसा कंपाउंड है दैट नीड्स टू बी कैटालाइज्ड, उसको कैटालिसिस की जरूरत है ताकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सके और फटाफट एक प्रोडक्ट दे सके। तो उसके लिए उसको कौन चाहिए, किसकी हेल्प चाहिए, उसको उसके एंजाइम की हेल्प चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर द स्टूडेंट्स, आपको चीजों को अप्रोच करना है, बट उनको अप्रोच कैसे करना है, यू नीड अ टीचर। सो चीजें तो आप अप्रोच वैसे भी करने वाले हो, लेकिन टीचर की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है, ताकि आप उस अप्रोच को जल्दी से समझ सको कि आपको चीजें कैसे ग्रास्प करनी है, कैसे अंडरस्टैंड करनी है, कैसे अचीव करनी है। जस्ट लाइक दैट, जो सबस्ट्रेट है उसको कैटालिसिस तो चाहिए, क्योंकि उसको देना है प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट का काम है प्रोडक्ट देना, लेकिन वो कब देगा, जब उसको कैटालिसिस मिलेगी। एंड वो कैटालिसिस कौन कराएगा, एंजाइम। और कैसे कराएगा, सबस्ट्रेट से बाइंड करके। तो एंजाइम सबस्ट्रेट पे बाइंड हो जाता है, क्योंकि सबस्ट्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसको कैटालिसिस की जरूरत है। और वो जो सबस्ट्रेट है वो कहाँ जाके बाइंड होता है एंजाइम में, उसकी एक्टिव साइट पे। दीज आर द एक्टिव साइट्स आई हैव शोन। So after getting bind to the active site, what happens? The next step is the binding of the substrate induces enzyme to alter its shape and fit more tightly around the substrate. कहने का मतलब क्या है कि जब सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हो जाती है एंजाइम की एक्टिव साइट पे, तो उसके बाद वो उसकी शेप को थोड़ा सा चेंज कर लेता है, ताकि वो सबस्ट्रेट के अराउंड, जो उसका एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के अराउंड टाइटली और अच्छे से फिट हो सके। कहने का मतलब, आप बच्चे हैं, हम टीचर हैं, आपको पता था कि आपको चीज को अप्रोच करना है, हम लोगों ने स्टार्ट किया, मैंने आपको स्टार्ट किया पढ़ाना, वी स्टार्टेड स्टडिंग, लेकिन थोड़ा सा तो गैप रहेगा। मेरा हो सकता है तरीका थोड़ा सा अलग है, आपका समझने का तरीका अलग है, तो हम क्या करते हैं, वी डू अ कॉम्प्रोमाइज कि देखो स्टूडेंट्स, मैं ऐसे आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करके हम इस वाले स्टडी मेथड से पढ़ेंगे। और आप लोग क्या करोगे कि ठीक है मैम, हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा इस तरीके से बेटर समझा पाओगे अगर आप, तो और भी अच्छा होगा। तो व्हाट वी डिड इज कि हमने एक दूसरे के साथ एक लिटिल कॉम्प्रोमाइज किया कि हम एक दूसरे के साथ बेटर फिट हो सकें, एक दूसरे की लर्निंग एंड टीचिंग स्किल्स को शेप दे सकें, उसके लिए हमने एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। दिस टाइप ऑफ थिंग इज done by substrate and enzyme as well. Substrate and enzymes are doing compromise with each other कि भाई देख, तेरे को अपनी थोड़ी सी जो शेप है उसको चेंज करना पड़ेगा, कि सबस्ट्रेट एंजाइम को बोल रहा है कि आपको अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ, अल्टर कर देता हूँ उसको, ताकि आप मेरे अराउंड टाइटली फिट हो सको और हम आगे रिएक्शन को कंप्लीट कर सकें। देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज, जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो अब सबस्ट्रेट की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गई है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। तो अब क्या हो गया, उसने क्या करना था, सबस्ट्रेट को कैटेलाइज ही तो कराना था। तो जब वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए एंजाइम और सबस्ट्रेट, उसके बाद एंजाइम ने क्या किया, सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। एंड जब वो केमिकल बॉन्ड्स की ब्रेकिंग, वो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, आफ्टर दैट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। यही तो चाहिए था, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया तो इसके बाद प्रोडक्ट भी बन जाएगा। सो व्हाट इज स्टेप 4, द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन एंड फ्री एंजाइम इज रेडी टू टेक अप अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट। एंजाइम ने अपने प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया, जो भी उसके कॉम्प्लेक्स में बने थे, उसके बाद उसने प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, वी हैव क्लोज प्रॉक्सिमिटी, वी विल बी डीलिंग विद क्लोज प्रॉक्सिमिटीज, देन आई विल स्टार्ट टू ब्रेक द हिंड्रेंस एंड बैरियर्स ऑफ योर ब्रेन, जिसकी वजह से आप आगे अपनी चीजों को अप्रोच कर सको। उसके बाद आप उस अप्रोच के बहुत क्लोज जाने लगोगे, यू विल गिव गुड एग्जाम्स एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, आप लोग रिलीज हो जाओगे टू योर एम, जो आपको चाहिए है वहां आप रिलीज हो जाओगे एंड आई विल बी
free again to take a new batch. So just like that, एंजाइम ने क्या किया, जिस रिएक्शन के लिए उसने सबस्ट्रेट से बाइंड किया था उसके प्रोडक्ट्स उसने रिलीज कर दिए और फ्री एंजाइम फिर से रेडी हो गया अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट्स को टेकअप करने के लिए. Do you people get it? Please be louder. Do you people? Okay, okay, great, fine. Now we will study this later on. I will tell you something else. Okay. I have already told you these things. Properties of enzymes हमने already पढ़ी थी कि वो अपने substrate के लिए बहुत specific होते हैं. Catalytic power उसकी enormous है, वो मैंने आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज के एग्जाम्पल से समझाया. मोस्ट ऑफ देम प्रोटीन्स होते हैं, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर से समझाया. लॉक एंड की मॉडल हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया. रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हुए. वी विल कम टू दिस पॉइंट नाउ. कैसे कैसे कर रहा है वो ये काम, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है. हाउ एंजाइम इज डूइंग दिस. सी, this is enzyme structure and catalysis. I have taken very beautifully and clearly made diagrams from a book named as Leninger. This is a very good, just like a Bible book for biochemistry students. And this is a part of biochemistry, enzymes and all. So I have taken a very beautiful diagram from that book. See, आप ऐसा समझो, वी हैव पार्ट ए ऑफ दिस डायग्राम जहाँ पे हमारे पास ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपके पास कोई भी एंजाइम नहीं है. एक मेटल स्टिक जैसा सबस्ट्रेट रहता होगा, समझ लो आपके पास चौक है या कोई रबर की पाइप है, या थिंक इट लाइक यू हैव अ रबर पाइप जो कि आपका सबस्ट्रेट है. उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी क्योंकि उसके पास कोई एंजाइम नहीं है. सो व्हाट विल हैपन इज एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, उसको थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, वो बेंट स्टिक बन जाएगा एंड देन व्हाट विल हैपन इज टूट जाएगा क्योंकि एक लिमिट आएगी जब वो और बेंड नहीं हो सकता. एट दैट पॉइंट इट विल ब्रेक इनटू व्हाट, ब्रेक इनटू प्रोडक्ट्स. इसके साइड में यू हैव शोन अ ग्राफ और अ डायग्राम. व्हाट इज दैट? फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी. you are studying this in your chemistry class. गिब्स फ्री एनर्जी एक तरफ दिखाई है ऑन वाई एक्सिस, दूसरी तरफ क्या बात कर रहे हैं हम, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स कैसे बन रहे हैं उसकी बात हो रही है. सो हुआ क्या, सबस्ट्रेट था, होते 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 व्हाट हैपेंड वाज गिब्स फ्री एनर्जी उसकी इंक्रीज होती चली गई. एक स्टेट आया जहां पे वो और इंक्रीज नहीं हुई एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन एंड आफ्टर कमिंग डाउन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. सो ये गिब्स फ्री एनर्जी का एरो है. यहाँ सबस्ट्रेट था, that got increased and after that it got converted into product. ये कंडीशन कब हुई? ये कंडीशन तब अराइज हुई जब आपके पास कोई एंजाइम नहीं था इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए. लेकिन इसके बाद आई एक अनदर कंडीशन. व्हाट इज दैट कंडीशन? एंजाइम कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट. कहने का मतलब क्या है, सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री एक एंजाइम आ गया. एंजाइम ने बोला मैं कराता हूं आपकी रिएक्शन, यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर नाउ. ठीक है, तो वो स्टिक थी, मेटल स्टिक वाली सबस्ट्रेट, मैग्नेट की तरह आके एंजाइम उससे लग गया उसके सराउंडिंग में, क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी चाहिए उसको रिएक्शन कराने के लिए सबस्ट्रेट के साथ. उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? सी इन द डायग्राम. यू हैड अ सबस्ट्रेट, थोड़ा सा उसका गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ा, इट केम डाउन. क्यों कम आया? क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना था. अब कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके अंदर एनर्जी आ गई कि हाँ अब मिलके हम दोनों काम करेंगे. सी द इंक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी. एकदम वो अच्छे से पीक उसने पकड़ा, ऊपर गया. आफ्टर दैट इट केम डाउन टू मेक अ प्रोडक्ट, क्योंकि बन गया अब प्रोडक्ट. लेकिन अब यू सी द डिफरेंस इज, जहां आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, फ्रॉम दिस लाइन गिवन बिलो, सी की आपकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या है?
एंड जहां आपके पास ऊपर वाली स्टेट थी जहां आप सबस्ट्रेट से डायरेक्टली प्रोडक्ट पे आ रहे थे सी की, वहां पे गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? This is the difference between a enzyme catalyzed reaction that is written as delta G cat and delta G uncat. कहने का मतलब ये है वो एनर्जी थी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की, ये एनर्जी है कैटलाइज्ड रिएक्शन की. एंड विच एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट? गिब्स फ्री एनर्जी. नाउ यू हैव दिस स्टेट जहां पे एंजाइम कंप्लीमेंट्री टू ट्रांजिशन स्टेट आ गया. ये जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट आई ना, इसके कंप्लीमेंट्री एक एंजाइम आ गया. यहां क्या हुआ? यू हैड एंजाइम सबस्ट्रेट, ट्रांजिशन स्टेट के कंप्लीमेंट्री एंजाइम आया था, एंजाइम आपको मिल गया, प्रोडक्ट्स गोट ब्रोकन. वी विल अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम डायग्राम. देखो सबस्ट्रेट था, थोड़ा सा एनर्जी ऊपर हुआ, उसके बाद वो बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ क्योंकि जो एंजाइम था वो आपकी ट्रांजिशन स्टेट के कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, तो उसको बहुत नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो वहीं से बेंड होके दोबारा उसने अपनी एनर्जी को बढ़ा लिया एंड आफ्टर दैट उसने प्रोडक्ट बना दिया. यहां क्या हुआ? सी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की एनर्जी, सी द एनर्जी ड्यू टू catalyzed reaction, and this is the decrease in delta Gm. So these are the reaction coordinates and this is how it works. Furthermore, I will tell you more about activation energy. This concept is little difficult. Not actually difficult, but it's quite complicated because you have to understand things from bio point of view as well as you have to understand via chemistry point of view. तो इसके बारे में हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे with more beautifully diagrams. I will try to make elaborated diagrams for when I will teach you this thing. ठीक है? तो नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, इट चेंजेस ओनली द रेट एट विच इक्विलिब्रियम. हाँ ऑफ कोर्स ये मैंने आपको बात बताई थी कि इक्विलिब्रियम अचीव होगा, उस रेट का सिर्फ वो चेंज करता है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे वो कोई इफेक्ट नहीं डालता है. नाउ यू हैव समथिंग टू नो. एमसीक्यूज में लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस पोर्शन कि मतलब हर साल देयर शुड बी 2 to 3 क्वेश्चन एवरी ईयर कि एंजाइम्स हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम, अनदर वाज इन सिंपल एंजाइम. सिंपल एंजाइम का मतलब है दे आर एंटायरली मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. आई हैव रिटन एंटायरली ए, इट मींस एंटायरली अमीनो एसिड्स. Then when we talk about conjugated enzymes, you have protein as well as non-protein group, जिसको हम complete को बोलते हैं, जो portion है that is known as cofactor. Completely active अगर conjugated enzyme आपके पास होगा, then that is known as holoenzyme. And after that, if you have conjugated enzyme minus cofactor, आपका जो कंप्लीट कॉन्जुगेटेड एंजाइम है अगर उसमें से आप कोफैक्टर को हटा दें तो आपके पास आता है इनएक्टिव पोर्शन ऑफ एंजाइम दैट इज नोन एज एपोएंजाइम. सो यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग? this is the these are the things that come in your exam कि ये कोफैक्टर क्या होते हैं, कंजुगेटेड एंजाइम क्या होते हैं, सिंपल एंजाइम होते हैं. देखो सिंपली सेइंग जो एंजाइम्स होते हैं वो एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुए होते हैं. सो व्हाट हैपन इज कि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे जो नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट होता है वो एंजाइम से बाइंड कर जाता है उसको कैटालिटिकली एक्टिव बनाने के लिए. और ये जो नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है ना, द नॉन प्रोटीन पोर्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज नोन एज कोफैक्टर. देयर माइट कम अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट और नॉन प्रोटीन ग्रुप ऑफ एंजाइम. व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज नोन एज कोफैक्टर. Then you have the protein portion of enzyme that is known as apoenzyme. क्योंकि कोफैक्टर मैंने क्या बताया? नॉन प्रोटीन पार्ट. और जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है वो क्या होता है? प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों को मिला के जो कंप्लीट एंजाइम बनेगा दैट इज कॉन्जुगेटेड एंजाइम.
अब कोफैक्टर को उसमें से निकाल दो जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो आपके पास क्या बच गया? प्रोटीन पार्ट। एंड व्हाट इज दिस प्रोटीन पोर्शन? दिस इज नोन एज इनएक्टिव एंजाइम एंड आल्सो कॉल्ड एज एपोएंजाइम। उसके बाद सिंपल एंजाइम। सिंपल एंजाइम क्या है? दे आर एंटायरली अमीनो एसिड्स। तो ये जो कोफैक्टर हैं वो कोवलेंटली भी लिंक हो सकते हैं और नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग भी होती है। यू वुड हैव स्टडीड अबाउट कोवलेंट एंड नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स इन केमिस्ट्री। तो ये जो कोफैक्टर हैं वो कैसे अटैच हो सकते हैं प्रोटीन पार्ट के साथ? कोवलेंटली भी अटैच हो सकते हैं और नॉन कोवलेंटली भी अटैच हो सकते हैं। लेकिन अब बात आ गई काइंड ऑफ कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर और भी मतलब बहुत सारे तरीके के भी हो सकते हैं। देयर कैन बी सब ग्रुप्स ऑफ कोफैक्टर्स। व्हाट आर दीज सब ग्रुप्स? दे कैन बी आइडेंटिफाइड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस। जो मेटल आयन है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ग्रुप होते हैं कोफैक्टर्स के, उनको हम बोलते हैं कोएंजाइम्स। एंड जो टाइटली लिंक्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं उनको हम बोलते, सॉरी नॉट टाइटली लिंक्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, बेसिकली प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये दिस इज रिटन रॉन्ग हियर, ये स्टेटमेंट मुझसे कुछ गलत हो गया था व्हेन आई मेड माय नोट्स। बेसिकली जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and they are distinguished from other cofactors in that they are tightly bound to the apoenzyme. Prosthetic group को आप कैसे पहचानते हो? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप के बीच में अगर पहचानना हो तो वो इस तरीके से पहचाना जाता है कि जो एपोएंजाइम के साथ मतलब प्रोटीन वाले पार्ट के साथ टाइटली लिंक्ड होंगे उनको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। This line should be written as tightly linked with apoprotein part are known as prosthetic groups. Make it correct. When you will make notes, make it correct. I have already pronounced tightly linked with apoprotein portion or protein part of enzyme are known as prosthetic groups. Again, see, in next line I have written right. A coenzyme oblique metal ion that is very tightly or even covalently bind to the enzyme protein is known as prosthetic group. And after that, a complete catalytically active enzyme together with its bound coenzyme or metal ion is known as holoenzyme. जो completely active enzyme होता है उसको बोलते हैं हम holoenzyme। और जो प्रोटीन पार्ट होता है होल एंजाइम का वो क्या है? एपोप्रोटीन या फिर एपोएंजाइम। Okay, I think this is all for today. We will study about inorganic elements known as cofactors and their enzymes, वो कैसे काम करते हैं, उनको आप कैसे याद करोगे। We will talk about the tricks, मैं आपको निमोनिक्स बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी। अदर देन दैट हम एक्टिवेशन एनर्जी वाले पोर्शन के बारे में एड ऑन करेंगे, उसके बारे में और पढ़ेंगे। एंड वी विल move further on in